Assalamu alaikum everyone, my name is Shifa Ijaz and we're back again with another episode of Coffee with CEO. And today we have Mr. Faisal Lodhia, Managing Director, Lodhia Gypsum Industries, who is a pioneer of the gypsum manufacturing. Assalamu alaikum sir. Walaikum assalam. कैसे हैं सर आप? I'm very well, and you? Alhamdulillah. Sir, can you please tell us about your educational and professional journey in a nutshell? I've done my undergrad from DePaul University, Chicago, and I graduated in 2000, and then I came back to Pakistan. बस फिर पाकिस्तान जब आए तो एक नई दुनिया, नया एक नई सोच के साथ वापस आए. क्यों, when you are young, once you graduated and you're like, okay, I want to make something out of myself. So that was it, and then my journey started. My real struggle started in 2000. Okay. Yeah. Wonderful. Sir, what about your vision, mission, and business philosophy for Lodhia Gypsum Industries? Okay. How should I say it? मेरी फैमिली इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थी. Okay. मेरे अतराफ में, because I'm from a Maiman family background, so of course the business acumen and all that I had, and the platform and the support, but मुझे हमेशा से इंडस्ट्रियलिस्ट बनना था. तो जब मैं पढ़ के आया तो मेरे जो कज़न थे वो टेक्सटाइल, because my cousins were in textile, they were tycoon in textiles, and so I just always wanted to, it fascinated me, the whole the bigger arena. So जब मैं वापस आया पाकिस्तान, of course I was totally fresh off the board पढ़ाई के बाद. फिर मैं अपने फादर के साथ जाना शुरू कर दिया, क्योंकि हम मेमलों में होता है कि यू कीप गोइंग. मैं पहले भी जाता था जब पहले हाई स्कूल में था. तो फिर उसके बाद मैंने और मेरे भाई ने इंपोर्ट शुरू किया जिप्सम बोर्ड का. जब हम जिप्सम बोर्ड का इंपोर्ट करते थे तो डिमांड ग्रू विद द टाइम. और जब मैं अमेरिका में था तो मुझे मालूम था कि जब हम हमारे हॉस्टल में, जिसको डोम कहते हैं, या बाद में लेटर इन द अपार्टमेंट, हम जब कोई बराबर में से कुछ बोलता भी था तो आवाज़ आती थी. तो वी वर लाइक, क्यों ऐसा है? सो इट वाज ऑल ड्राई वॉल्स एंड fascinated me. When we came back, I just accidentally landed in a gypsum board import because my brother used to do it. Okay. And the demand grew and we went up to 50 containers a month. And one day my brother said, why don't we set up a plant here? And it required a huge investment at that time. We didn't have much. So बस मुझे जो मुझे कहते हैं ना कि खुदा आपको खुद ही उस जगह पे, उस मुकाम पे पहुंचा देता है, उस चौराहे पे, कि वहाँ से फिर एक मोटरवे शुरू हो जाता है. You just land and you think it's all you, it's not you, it's destiny. Destiny takes you there, and then of course then you have to be a driving force to go on a certain pace. And how fast you want to go. There will be steeps, there will be turning, there will be a lot of ups and downs, but that you got to keep going. That's a philosophy of leadership. Going back to the gypsum board industry, बस मुझे एक अपने आप को प्रूफ करने का एक मौका मिल गया. और उस वक्त मेरी कुर्सी भी नहीं होती थी, मेरे भाई के सामने बैठता था मैं. Okay. So बस रात शाम को मैं जब वो जाते थे, I used to make a feasibility report. It took me a month, did all the research, whatnot, and then bingo, it happened. And then cut short, because of course if I'm going to tell you if I tell you my story of 20 years, it's going to take a lot of time and we have limited time, so I'm just going to cut short. Yes, please do that, sir. So then we went and हमने China गए, and China से हमने plant लिया. We went up to a few people, if you want to be part of it, it's a good opportunity, and they jumped on it. और gypsum board का plant हम लगाया. Not only in Pakistan we are the pioneer, but in the entire region. It just happened, it was destiny. But the thing is, you manifest. I believe in manifestation. Okay. So when you manifest something and you believe in such something so much deep, we all are filmy
to a certain extent. तो शाहरुख खान का एक डायलॉग है, किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहोगे कायनात आपके लिए उसको जोड़ने के लिए लग जाती है. So that's what happened. I manifested and I wanted so bad that it happened. Not only it put me or put my family on the map, but also it put the Pakistan on the map for the gypsum board industry. पहले ही इम्पोर्ट होता था, सोचें कितना ज़रा मुबादला हमारा जाता था. हमने फिर एक्सपोर्ट शुरू कर दिया. ना गल्फ ना मिडल ईस्ट में इसकी कोई फैक्ट्री थी, सिर्फ एक सऊदी अरब में थी, यूएई में नहीं थी, इंडिया में एक थी. इंडिया बहुत बड़ा है, वो भी उसको केटर नहीं कर सकता था. श्रीलंका, नेपाल. सो फिर लेटर ऑन व्हाट हैपेंड दैट माशाल्लाह से हम लोग तकरीबन 125-150 कंटेनर हमारा मंथली एक्सपोर्ट होना शुरू किया, मेनली टू यूएई, साउथ इंडिया. इंडिया में जब हमारा मुंबई पहली मरतबा माल गया पाकिस्तान से जा रहा है जिप्सम बोर्ड, तो जो हमें तकलीफ़ें और दिक्कतें और मुश्किलात हुई, और लेकिन जब वो गया और जो प्राइड फील किया हमने, वी स्टार्ट एक्सपोर्टिंग टू इंडिया एंड दैट वाज अ बिग प्राइड, यूएई बिग प्राइड. एंड देन लेटर ऑन it was good, everything was going fine. But if I tell you about my export story, it was one of its own kind. मुझे एक्सपोर्ट करना था. पाकिस्तान की मार्केट छोटी थी, 50 कंटेनर कर ली, हमारी जो फैक्ट्री की प्रोडक्शन थी was too much. So what are we gonna do? We're gonna go for export. No experience in export in terms of building materials. So what are we gonna do now? मैं दुबई गया था अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हीं दिनों फैमिली के साथ घूमने के लिए. फ्रेंड्स के साथ, sorry, that time I was not married. So no, I think I was married. Yeah. So I was married. I went with my wife at that time. So वहाँ से येलो पेजेस मैंने उठाए थे. उस ज़माने में Google and Google search, it was not that popular. Probably was not even there at that time. So alright, तो वहाँ से मैंने येलो पेज उठाए, and when I came back, I did all the building material कौन import करता है. The next I did, इतना सारा samples मुझे लेके जाना. So I took it with me. वहाँ बैठ कर सबको मैंने भेजा. Just look at the driving force. See, you got to find your own ways. Now things are given to you in your palm, which is your phone or laptop. Oh, definitely. You know, and the sky is the limit. But at that time, we didn't have that much. So I found the way, find the opportunity. How can I tap it? So वहाँ से जब येलो पेजेस लेके आया, तकरीबन 200 से 300 लोगों की लिस्ट थी. वहाँ से सब सैम्पल्स लेके गया, वहाँ पर मैंने डाला, ले गया अपने साथ. एंड देन सबको भेज दिया मैंने लोकल, उसे सिम कार्ड लेके, अपना नंबर लेके. एंड आई जस्ट स्टार्टेड वेटिंग. आई वेटेड and I waited, but I did of course a little bit shopping. You know, you gotta do that. Definitely. When you go in Dubai, you gotta do what you gotta do at that time. So then I started getting calls from left and right, and 20 people, and bingo, cut short. First container, second container, and then there was no stopping. And that boosted my confidence, my ego. At the same time, gave me a driving force. That could happen. Anything can happen. Sri Lanka, same thing. Went with my wife and kid. Did the same thing. Sri Lanka, Kenya, South Africa, India, and whatnot. Such a pride. कि पाकिस्तान में जो पहले माल इम्पोर्ट था हमने भेजना शुरू किया. खैर फिर वक्त एक आया कि we had to put up another plant because the market was growing internationally, locally. फिर हमने यहाँ पर हतार में एक दूसरा प्रोडक्शन लाइन लगाया. It's a state of art production line in Hattar industrial area. It's a European plant with the state of art technology. Now since we have a knack in it, we that's our specialty. At that time we were baby, and there were no competition around, so we could do what we could do. But now the competitions around there in GCC, there are many factories now. We don't export there now because the market has saturated. So when the market is saturated, you got to diversify. Definitely. You got to go innovative. Okay, in your own country, in your own market, educate people, bring more innovation, and more education, more awareness, meaning more opportunity, more sales. So this is what we did. यहाँ पर जब हमने दूसरा प्रोडक्शन प्लांट स्टेट ऑफ आर्ट, ओके, हमारे पास जितने भी वेरिएंट्स दुनिया में हैं, जो क्लासिक एमआर इज मॉइस्चराइजर, जिप्सम बोर्ड के अलग अलग कैटेगरीज वेरिएंट्स होते हैं.
फायर रेजिस्टेंस पाकिस्तान में अब बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, लोगों को शऊर आ रहा है, जिस तरह के फायर हैज़र्ड्स हैं, फायर अनफॉर्चुनेटली इतने इंसिडेंट्स होने लगे हैं, एक्सीडेंट्स होने लगे हैं, तो हमने हर पूरी वैरायटी इसमें लिया है और इतनी हमने अवेयरनेस दी। आईपैक्स में हम जाते हैं, आर्किटेक्ट्स को हम अवेयरनेस देते हैं। डॉल्फिन मॉल लाहौर, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान एट दिस वेरी टाइम। उसमें पहले जिप रॉक लग रहा था, एक ब्रिटिश ब्रांड है और वहाँ से आ रहे थे, बट वी कन्विंस्ड, वी हैड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड दे अप्रूव्ड। सो इमेजिन the scale of that project, where the Belgium architects and the international contractors are involved, the consultant companies. So of course they would not have the confidence in Pakistani product, but the thing is, see, I believed in myself, I believed in my product, and I delivered what I believed in. So the thing is, again, if you look at it in a concept, that you got to believe in yourself. And one more thing, see, the society we live in, the mashra, we are currently in a negative environment where so much of nafsi और बस एक लोगों में कर थ्रोट काटना है। But the thing is, अगर आपको अच्छी प्रोडक्ट देंगे, अपने आप में बिलीव करेंगे, जो लोग कर रहे हैं उनसे आपको अलग जाना है, because you got to go against the tide. If you're gonna go with the tide, जो जा रहा जैसा होता है ऐसा ही होगा। You got to go against the tide to go get somewhere, and that will make you more stronger. Definitely. So going back, इसमें थोड़ा बहुत मैं लेसन भी दे रहा हूँ कि अगर हम भी यहाँ पर जिस तरह कंपनियाँ के पैसे कमाओ, बस नहीं, नाम कमाना है, हमें अपने मुल्क का नाम आगे बढ़ाना है, अपने ख़ानदान का नाम आगे बढ़ाना है, अपना नाम बढ़ाना है, वो आप जिस तरह आपकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, आपके ख़ानदान ने आपको कैसे आगे रेस किया है, आप वही चीज़ अपनी कंपनी में लेके जाते हो, आप वही चीज़ आप अपनी कंपनी के एथिक्स में लेके जाते हो, वही आपकी कंपनी पॉलिसीज़ डिफाइन करती है, वेयर यू केम फ्रॉम, व्हाट योर अपब्रिंगिंग वाज, एंड इफ़ यू डू दैट, व्हाट आपकी परवरिश जिस तरह अच्छी हुई है वो आप अपने प्रोडक्ट में ट्रांसलेट करो, अपने कमिटमेंट में ट्रांसलेट करो, बिलीव मी, you will make it. So I can keep going on and on, but नहीं sir, I think we should put a stop right here, ठीक है, वरना I have a lot of other things to ask you as well. Moving on sir, gypsum की जो demand है in recent years with the evolving construction materials and techniques, how has it changed over the years? Can you please tell us about that? Okay, gypsum board दुनिया में 150 साल पुराना है। Okay. जर्मन कंपनी का नाम उन्होंने 150 साल पहले निकाला है। हमने 2004 में प्लांट लगाया। सो इमेजिन हम कितना दुनिया से पीछे हैं डेफिनेटली। और चूंकि हम लोग हमारे आर्किटेक्ट्स और जो एक हमारा जो कल्चर था कि जिस तरह जो चीज़ चल रही है उसी को चलाओ, बिकॉज पीपल आर नॉट वेरी रिसेप्टिव, लोग इतनी जल्दी चीज़ जो कुछ एलियन चीज़ें होती हैं उनके लिए उसको इतना ज़्यादा रिसेप्टिव नहीं होते। लेकिन जिप्सम बोर्ड में क्या था कि लोग सीलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका एक नाम मुझे याद है। जब मैं शुरू में जिप्सम बोर्ड की इंडस्ट्री लगाई थी तो मैं किसी से कोई मुझसे पूछे क्या करते हो, तो मैं बोला जिप्सम बोर्ड, तो मैं बोला ये है बिल्डिंग मटेरियल, इंटीरियर सीलिंग एंड पार्टीशन, तो थोड़ा सा हैवी लगने लगता था। मतलब हम फॉल्स सीलिंग बनाते हैं। सो दैट वाज इट। सो मेरे जो एक आम आदमी को, बिकॉज हम क्या करते थे, ये क्या करते हैं, एक आम आदमी को जब बताते थे तो उसको अच्छा फॉल्स सीलिंग, सो उनको एजुकेट करके 10 हमें कितने 20 साल से हम आईपैक्स में जा रहे हैं, एग्जीबिशंस में जा रहे हैं, नहीं 18 साल से, एंड वी आर कीप एजुकेटिंग द यंग स्टूडेंट्स, may it be the architect students or may it be the normal common people around us, architects, builders, कि ये चीज़ इस तरह हो सकती है। जिस तरह वक्त हमने उनको एजुकेट किया, वो लोग बाहर मुल्कों में गए, उन्होंने देखा, बाहर से लोग आर्किटेक्ट पढ़ के आए, उन्होंने यहाँ पर जिस तरह करने लगे। तो सीलिंग में पहले पीओपी लगता था जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, अगेन वो ख़त्म हुआ, कम हुआ। अब लोग जिप्सम बोर्ड की सीलिंग्स करते हैं क्योंकि इसमें वेरियस डिज़ाइंस एंड चीज़ें हो सकती हैं।
फिर आहिस्ता आहिस्ता पार्टीशन, जो दुनिया में जो हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं, जो अमेरिका यूरोप वगैरह में जो बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, वो सारी जिप्सम बोर्ड ड्राई वॉल्स पार्टीशन से बनती थी। Yes. जो मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह हम जब अमेरिका में जाते थे आवाज़ आती थी, तो क्या था, जिप्सम बोर्ड था, पार्टीशंस था। वो आहिस्ता आहिस्ता, अब आप देखें ये एम्पोरियम मॉल जो है निशात का जो होटल है, it was the first project on such a large scale where they used gypsum board drywall partition in their hotels, in their mall, Dolmen Mall, on such a large scale, doing the same thing. और उसमें जो बाहर के लोग बाहर इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो बाहर के आर्किटेक्ट्स एंड कंसल्ट कंपनीज आ रही हैं, जो उसको मैनिटोरी कर रही हैं, जो हमारे लोकल लोग यहाँ आर्किटेक्ट्स इनके साथ इन्वॉल्व होकर मर्ज होकर काम कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं, वो आगे और बढ़ा रहे हैं। तो अब अवेयरनेस इतनी हो गई है कि लाइक आई टोल्ड यू, हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। अब हर घर की डिमांड है कि एस्थेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। अब लोग इवन जो पहले जिस तरह के हमारे कपड़े भी हम पहनते थे, अब आप देखें जिस तरह के कपड़ों का शोर, प्रोडक्ट्स का, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का शोर, हमारे फर्नीचर का, इसी तरह जो सीलिंग्स हैं उसका भी शोर आया है। तो डिमांड वक्त के साथ बहुत बड़ी है और मुझे लगता है आगे आते हुए जितने और नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इस तरह के लार्ज स्केल्स वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ड्राई वॉल्स कर रहे हैं, यहाँ पर आएंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा एज अ कंट्री। Definitely, sir. As a country. Sir, moving on, what role do you see gypsum playing in the future of sustainable building materials? कैसे sustainability की तरफ किस तरीके से जाएं, और साथ में joining it with the environmental impact, again आपने बताया कि किस तरह डिमांड बढ़ रही है, कम तो हो नहीं रही है, तो obviously कोई ना कोई environmental impact आएगा इसका भी, मतलब इसको manufacturing की तरफ अगर हम जाएं, so how do you think you can mitigate these effects? Okay, our product logo is Go Green. Yes, definitely. So our gypsum board is a green product, is a sustainable product. Gypsum, as a matter of fact, is what calcium दवाई में इस्तेमाल होता है। जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी, जिसमें उस वक्त जर्मन्स के पास खाने के लिए नहीं था, तो वो अपने एनर्जी के लिए नहीं कि उसको खा लेते थे। So जो आपका जो सवाल है कि environmentally क्या, as far as the finished product environmental friendly है, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जब मैं पीछे जाऊंगा ताकि एज अ प्रोडक्ट इसका कोई वेस्ट भी होता है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जल भी नहीं सकता, वक्त के साथ वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। हमारी जो जिप्सम बोर्ड की प्रोडक्शन होती है उसमें हमने हमारे पास इन्वायरमेंटल जो जितनी भी सर्टिफिकेट्स हैं वो हम जो गवर्नमेंट की तरफ से वो हमारे पास मौजूद हैं, और हमने उनकी जितने भी जो इनकी बाय लॉज हैं वो सब हमने फुलफिल किए हैं। हमारी वेस्टेज जो है, जो सब हम उसको वापस उसको हम एयर से डस्ट कलेक्टर से लेके उसको रिसाइकिल करते हैं। ओके, सो अगर हमारी फैक्ट्री का भी इत्तेफाक हो, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू गाइस सम टाइम कि वहाँ पर उसमें आपको कहीं से धुआं निकलता हुआ नजर नहीं आएगा। Yes. Sir, what are the key challenges or opportunities in this field? Challenges, oh my God. And opportunities as well. Well, अभी जो मुल्क के हालात चल रहे हैं जिसमें जितने चैलेंजेस हैं, आई कांट टेल यू कि जितनी इंडस्ट्रीज को अभी इस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। Regardless of the growth in the industry, the profit margin has gone down to such a level कि we can't even compete. forget about the international market, export तो हमारा ख़त्म हो रहा है, ये हो गया। जो गैस के बिल जो हमारे हैं, जो हमारे यूटिलिटीज़ के बिल हैं, जितनी सैलरीज इंक्रीज़ हो रही हैं, जो टैक्सेस आ रहे हैं, जितने ये चैलेंजेस इस वक्त हैं, हमारी जब ये फैक्ट्री है वो मेरे ख्याल से 3 दिन प्रोडक्शन पे है, बाकी बिकॉज डेवलपमेंट मार्केट में हो नहीं रही, तो ग्रोथ अभी इस वक्त रुकी भी है। जो ये सब मैं आपको बता रहा था ये उस वक्त का है कि जब एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, बट द करंट सिचुएशन हमारा एक प्लांट जो है वो 2 दिन चलता है, दूसरा प्लांट हमारा 3 दिन चलता है, और अभी थिंग्स आर इज ऑन अ सर्वाइवल स्टेज। अब पोटेंशियल पॉसिबिलिटी
राइट नाउ जो भी आज के हालात हैं उसमें जो सर्वाइवल है, क्योंकि हमारे साथ इतने 200 सवा 200 लोगों की फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, तो हमारा उनका सर्वाइवल होना ही बहुत बड़ी बात है जो आजकल के करंटली इंडस्ट्रियल हालात हैं। सो पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटीज़ तो तब आएंगी जब हमें गवर्नमेंट हमें सहूलतें देंगी। हमें जो अभी जो करंट क्राइसिस है, हमें हमारा जो कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है वो इंपोर्ट पे हमें बहुत मुश्किलात आ रही हैं। जो भी करंट फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जो डॉलर एंड यूएस डॉलर्स एंड जो पाक रुपीज़ का सर्ज एंड ऑल दैट, so things doesn't seem too good. It's very disappointing. I believe in myself, so I'm here where I am here and having this opportunity to talk to you and your audience. And I also believe in Pakistan. Definitely. And I think we have such potential as a country at large. अगर हम इसको थोड़ा सा इस मुश्किलात से निकल जाएं, so I think there will be possibility for everyone. If there is possibility for everyone, of course we're going to take some, you're going to take some. डेवलपमेंट होगी, प्रोजेक्ट्स बनेंगे, आगे बनेंगे तो बिल्डर्स को भी फ़ायदा होगा, आवाम को भी फ़ायदा होगा। जो इनके साथ जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ अराउंड 58 इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं, उन सब इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा, उसमें हमें भी होगा, और फिर वो हम अपने टैक्सेस के हिसाब से भी देंगे। तो ये जो पहिया भी जो रुका हुआ है वो जब तक वो सही तरीके से चलेगा नहीं, हम इस अपॉर्चुनिटीज़ को टैप नहीं कर पाएंगे। Sir, living in the 21st century where female empowerment is at the all-time high, what are your strategy to promote diversity and inclusion in your company? Okay, back in days, of course, normal Maiman business culture, or may it be Sheikh culture, may it be any our Pakistani culture, female were not, first of all, in our families, they were not allowed to work. Figured about any organization hiring them. So of course I was also part of it, and I never liked it because I wouldn't want my daughter to be like that. I would want my daughter to be empowered and achieve whatever she want to. So जब 10 साल पहले हमने पहली female staff rakha, and alhamdulillah now we have about 4 or 5 sales female staff and in admin, and as a matter of fact they work more harder and they're more clever than our boys these days. So yeah. Sir, human resource के हवाले से what are the challenges that you face while hiring someone for the industry? Oh my God. See, again, I don't want to nag because nagging या इस तरह की बातें करने से I think थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है, आपके ऑरा के अंदर आ जाती है, आपकी पर्सनालिटी के अंदर आ जाती है, एंड देन बट हमारे लोग जो हैं अब सब कुछ शॉर्टकट चाहता है। हर आदमी बोलता है कि मुझे काम नहीं करना, मुझे सैलरी मिले, मुझे अपने आप को प्रूफ नहीं करना। मैं जब हायर कर लेता हूँ और मेरा एक अपना एक तरीके का है, जारी बात है, मैं एक कंफर्ट जोन में मैं अपने स्टाफ के साथ होता, आई एम नॉट देयर बॉस, आई एम देयर जस्ट, I tell them I'm also the employee of the company, so don't take me as a boss, but I'm also your friend, but if you take me as a mentor, so whatever I'm going to tell you, उनको तो गधे बनना है कि घोड़े बनना है। गधा जो होता है उसको चाबुक मार के चलाना होता है, घोड़ा होता है वो दौड़ता है। तो हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इस जनरेशन में घोड़े कम हैं, गधे। मैं वो नहीं बोलना चाह रहा था, तभी मैंने अब क्या कहा कि आज के ज़माने में हमारे पास, हमारे माशरे में, मैं पाकिस्तान की बात करूँगा, लाइक आई सेड, लड़कियाँ बॉय से ज़्यादा क्लेवर हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गई हैं, क्योंकि उनको मनाना है अपने आप को, मनवाना है अपने आप को। तो वो मुझे लगता है कि जो ख़वातीन हैं, जो नई जनरेशन है, इवन माई जनरेशन फॉर दैट मैटर, गर्ल्स आर मोर प्रोडक्टिव दैन बॉयज़। सो या हमें प्रॉब्लम आती है। Okay, sir, being a business leader, can you please define leadership for our audience? Leadership. And leadership in crisis, the next step would be. Okay, leadership. मैंने जो अपने प्रोसेस में सीखा है, और फिर कुछ कोट्स आते हैं तो अपने आप को रिलेट करता हूँ। जो लीडर होता है वो सबको लेके चलता है,
जो बॉस होता है वो सिर्फ डांटता रहता है। Definitely. तो मैं यही बोलता हूँ अपने आप को, अपने बच्चों को भी, अपने दोस्त यारों को भी, यार लीडर बनना है कि बॉस बनना है, क्योंकि लीडर के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आती हैं, बहुत सारी कुर्बानियाँ भी आती हैं, बहुत सारा पेशेंस भी आता है। तो ये लीडरशिप एक वर्ड नहीं है, ये पूरी कैफियत है, पूरी एक सोच है। तो लीडर बनना मुश्किल काम है, लेकिन इतना भी नहीं है। सो लीडरशिप को मैं तो ये डिफाइन करता हूँ कि लीडरशिप हैज़ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि उसको सबको लेके चलना होता है। सो एंड व्हाट अबाउट इन क्राइसिस सर, जिस तरह आपने मेंशन किया कि हालात अभी उस तरीके से अच्छे नहीं चल रहे, सो हाउ डू यू डिफाइन लीडरशिप इन क्राइसिस? लाइक आई सेड, कम्स विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं हमें, हम एज अ कंपनी, अगर मैं जो बात करूँगा, इट मे साउंड लाइक ए क्लीशे बट इट्स नॉट। अब हम लाइक आई सेड कि हमारा सर्वाइवल चल रहा है, तो क्योंकि हमारे साथ इतने सारे लोगों की फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, सो वी हैव टू लुक, उनका देखना है, हमें अपने प्रॉफिटेबिलिटी को छोड़ना है, हमें उनकी जो सहूलतें, उन्हें मेडिकल एजुकेशन और जो उनकी जो ज़रूरियात हैं इन हालात में, तो हमें अपने आप को, अपनी कुर्बानियाँ दे के उनको आगे, उनको फैसिलिटेट करना है। तो लीडरशिप में जब क्राइसिस में वी हैव टू मेक सम टफ डिसीजन इस टाइम विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट योर ओन पर्सनल बेनिफिट, बट यू हैव टू लुक अबाउट द बेनिफिट एंड लुक एट, यू हैव टू टेक कंसिडरेशन द पीपल अराउंड यू एज कलेक्टिव। So I think that's something great challenge of its own. बिल्कुल सर। What about emotional intelligence? What is the significance of EQ for a managing director or a CEO or a leader? Emotional intelligence comes with a lot of heartbreaks in terms of business wise. जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों से, चाहे आपके स्टाफ से हो, चाहे आपके बायर से हो, चाहे आपके सप्लायर से हो, sometimes things don't go the way you want to. The emotional up and down, it makes you a little wise and Definitely. gives you some patience, and then with the wisdom and the patience, with the emotional stability, you smile and make a right decision. Definitely. So where do you see yourself and your company 5 years down the road? Beautiful, beautiful, wow. The reason I said wow with such a profoundness कि जब हम तो यहाँ से पढ़ के गए थे मैट्रिक सिस्टम से, तो हमें तो नहीं मालूम था ये चीज़ें। I'm glad that I went at the age of 19 or 18. तो वहाँ पर पहला ये पूछा था, where do you see your 5 year? Where do you see yourself in 5 years? I had to think a lot at that time, and this is where I had the vision that they start manifesting क्या करना है। फिर 5 साल के बाद फिर जब ग्रेजुएशन हो रही थी, तो आखिर में भी यही सवाल था अगेन। सो मैंने जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने 5 ईयर प्लान को मैनिफेस्ट किया, वो अल्लाह ताला ने मेरी डेस्टिनी बनाया। लेकिन आज जिस जगह पे एस कलेक्टिवली हम पाकिस्तानी खड़े हुए हैं यहाँ पर, मुझे मेरा 5 ईयर प्लान नहीं मालूम। इट्स सो सैड। हाँ, मैं जाना कहाँ चाहता हूँ मुझे मालूम है, जाना कहाँ चाहता हूँ मालूम है, बट वेयर डू आई सी माई सेल्फ वो नहीं मालूम। बिकॉज उसमें फिर जो आज के हालात हैं, जिस तरह हमारे साथ इतनी नेगेटिविटी चल रही है, इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स चल रही है हमारे साथ, करंटली डोमेस्टिक इतनी पॉलिटिक्स चल रही है, थिंग्स आर नॉट स्टेबल, यू नो, अगेन आई एम नॉट डोंट नेगेटिविटी नहीं लाना चाहता। मुझे मालूम है मुझे कहाँ जाना है, लेकिन कहाँ मैं अपने आप को देखता हूँ मुझे नहीं मालूम। सर वही बता दें, कहाँ जाना चाह रहे हैं आप, कहाँ जाना चाहते हैं आप, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। कहाँ जाना चाहता हूँ? ओके, थिंग इज़ कि मुझे क्योंकि देखिए नई इनोवेटिव प्रोडक्ट लाए थे हम उस ज़माने में, और माशाल्लाह से पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और अभी तक हम रोशन कर रहे हैं। 1-2 और प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में नहीं हैं, जो इंपोर्ट हो रही हैं, जो हमारे ज़राए मुबादला बाहर ले जा रही हैं। मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट है बिल्डिंग मटेरियल का जो लगाना है फैक्ट्री, जिसकी इंडस्ट्री लगानी है, कि वो इंपोर्ट तो बंद होगा, जो हमारे लिए फ़ायदा होगा वो अभी हमारी सराउंडिंग नेबरिंग कंट्रीज़ में अभी उसकी इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ भी नहीं है, तो हमारा एक्सपोर्ट भी अच्छा होगा। बट जो अभी हालात हैं उसमें हम अपने आप को नहीं देख पा रहे। मूविंग ऑन सर, व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द एज ऑफ AI?
Okay, this is something it came so fast. Definitely. Internationally, Took a शायद world लोग by हो रहे storm. होंगे. Yeah. हमें सोचने का मौका ही नहीं दिया. हम प्रिपेयर्ड ही नहीं है. काफी तो एडजस्ट भी नहीं हो पा रहे हैं अभी तक. हम पाकिस्तानी अभी प्रिपेयर्ड भी नहीं है क्योंकि हमारे अभी हमें परेशानियाँ इतनी हैं. कराची में हम रहते तो हमें तो घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो हमें इतनी परेशानी हो जाती हैं. गटर ख़राब, रोड टूटे हुए, गाड़ी कैसे चलाएं, सिक्योरिटी इश्यूज. हम जो कराची जो शहर में रहते हैं, माशाल्लाह आप लोग जो लाहौर में रहते हैं, आप लोगों को ये सारी चीज़ें कोई मसला नहीं है. तो AI का कहाँ सोचेंगे हम. स्मोक का बहुत इशू है ना, वो इशू नहीं है. सांस नहीं आता हमें तो यहाँ पे. वो तो या तभी हमें अपने आप को ना थोड़ा बेटर फील हो रहा है कि एटलीस्ट हमें सांस तो आ रही है. सो AI के लिए गोइंग बैक टू योर थिंग, हमें फ़ौरन अडेप्टिव होना पड़ेगा. डेफिनेटली. पहले तो हमें अपना घर सीधा करना पड़ेगा. जब घर सीधा होगा तो फिर अडेप्टेशन पे आ जाएंगे. सो आई थिंक फर्स्ट हमें इस चैलेंजेस से एज अ कंट्री निकलना है, गवर्नमेंट को निकलवाना है. तभी हम यहाँ पर जो नई AI टेक्नोलॉजी है उसको अडेप्ट कर सकेंगे. अदरवाइज़ ब्रेन ड्रेन होगा. जो अब मेरा बेटा है उसको AI का बहुत शौक़ है. उसमें वो देख रहा है कि मुझे अभी उसमें ग्रेजुएशन इसमें करनी है. लेकिन मैंने कहा बेटा यहाँ का स्कोप कहाँ है. आई नो डैड, यहाँ पर स्कोप नहीं है. तो क्या ब्रेन ड्रेन हो जाएगा. सो वी हैव टू बी अडेप्टिव. That's what I think. No, definitely. Yeah. Sir, some short questions now. What is your recipe of success? ओके, मुझे जो वर्क किया वो तो मैनिफेस्टेशन थी, वर्क हार्ड था, डेडिकेशन थी, एंड जस्ट बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. समटाइम दैट इज लक. सो या आई वुड से मैनिफेस्टेशन, लक, हार्ड वर्क. एंड जब आप सक्सेस जाना चाह रहे हैं तो फिर ब्लाइंडर्स डालते हैं, भागते हो घोड़े की तरह. Definitely, sir. How do you stay happy, sir? Okay, happiness is such a cliche. अब तो नफ्सा नफ्सी की दुनिया है. हाँ, इंस्टा की ज़माना है. कहाँ से खुशियाँ मिलेगी. दूसरों की खुशियाँ जो नज़र आती हैं उसमें लगता है कि हम खुश नहीं हैं. लेकिन रेसिपी क्या है. जस्ट बी कंटेंट what you have. Show your gratitude towards Allah for you being you. So yeah, छोटी छोटी खुशियों में अगर हम खुशियाँ ढूंढेंगे तो हमें कलेक्टिवली खुशियाँ बहुत मिलेंगी. Definitely. Sir, how do you manage your stress? I work out. I give myself one hour. और मैं जिम चले जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ. वो 1 घंटा मेरे लिए डी स्ट्रेसिंग होता है. और बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस हो जाए तो फिर मैं रनिंग के लिए चले जाता हूँ. और बस कान में एयरपॉड्स लगाए 6-7 किलोमीटर बस मैं भागते रहता हूँ. और जब भाग के फारिग होता हूँ तो आई एम लाइक डी स्ट्रेस. Okay, that's good. That's wonderful. Sir, any regrets so far that you would like to mention here? We all do. Person without regret is like body without soul. But regrets को अपने आप पे हावी कभी नहीं किया. Probably अल्लाह ताला की तरफ से ये मेरे लिए था, so I can learn something out of it, get something out of it, get to somewhere he wanted me to be there, get more stronger. So I think whatever I am, wherever I am, because I did not, the regrets did not take over me. It made me more stronger. That's wonderful, sir. Sir, obviously, at your position, you would have had to make many difficult decisions in your life. Anyone that you would like to mention here? Yeah. Oh. It was fruitful though. Difficult, yeah. Big time. अब मैं आपको सिर्फ उसका जिस्ट बता दूंगा. एक ऐसा वक्त आया था ज़िंदगी में कि जो मेरी ज़िंदगी की जो सबसे जो बड़ी चाहत थी, जो मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट बनना था, और हमने जिन लोगों के साथ ये फैक्ट्री लगाई थी, आइडिया हमारा था, हमने इतनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचाया था. जस्ट हमारे पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे तो हमने किसी बाहर की पार्टनर को हमने इंडक्ट किया था. और जब वो फैक्ट्री चल गई तो उन्होंने हमें ऑप्शन दिया कि आप या तो फैक्ट्री ले लें या हमें दे दें. एंड वी डिडंट हैव मनी एट दैट टाइम. एंड जो उन्होंने सर्कमस्टांसेस हमारे लिए पैदा कर दिए थे कि आई रिमेंबर आई यूज्ड टू क्राई एट नाइट. जैसे कोई उस ज़माने में कोई दिल तोड़ के चले जाए आपका तो कैसा आप रोते हैं, तो ऐसा था. लेकिन मैं हारा नहीं और मैंने भाई को कहा कि नहीं, हमें ये इंडस्ट्री हमें लेनी है. मतलब वी डोंट हैव मनी.
तो मैंने कहा कि वो हम बाद में इंतज़ाम कर लेंगे, लेकिन उनको बाय आउट कर लो। तो उन्होंने हमें बोला कि ठीक है, हम आपको ऑप्शन देते हैं, पहला आप बाय आउट करना चाहें, एंड वी ऑप्टेड फॉर इट। सो इससे सबक ये ज़िंदगी में मिला, जो मुझे भी मिला और लोगों को भी देना चाहता हूँ, कि कभी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए तो पहले हाँ बोल दो, फिर बाद में सोचना कि करना कैसे है। Definitely. Sir, joblessness is everywhere. Any skill set that you would like to tell the youth to develop so that they can compete in this competitive market? मैं बिज़नेस के हवाले से अगर बात करूं, मुझे तो यही मालूम है। अदरवाइज़ आजकल लॉयर्स बहुत चल रहे हैं, जितने लोग आजकल 2 नंबरी और कर रहे हैं तो वो फ्रॉड्स कर रहे हैं, तो लॉयर्स का बहुत आजकल स्कोप है। मैं जिस जिम जाता हूँ वहाँ पर तकरीबन मेरे जो टाइम फ्रेम में 6 फीमेल्स आती हैं जो लॉयर हैं, एंड आई एम लाइक वाओ, ओके। तकरीबन 10 लॉयर हैं, अगेन लाइक यू नो माई टाइप पीपल, माई टाइप मीनिंग के यू नो लाइक जिस तरह के हम लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, तो लॉयर बहुत अच्छे जा रहे हैं। बिजनेस में अगर मैं जाऊँ जी तो ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी द फ्यूचर। डिजिटल मार्केटिंग आजकल बहुत है, तो मार्केटिंग of course marketing will never die, but marketing with the AI I think is a perfect mixed recipe for the upcoming generation to be picked up by a good human resource company. सर अगेन होपलेसनेस इतनी ज़्यादा हो गई कि एवरीवन ब्रेन ड्रेन भी बहुत सारा हो रहा है हमारे यूथ का, सो फॉर देम लास्टली कोई मैसेज ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान सर प्लीज। Okay, you have to believe in yourself. At the same time you have to believe in Pakistan. There is a lot of hopelessness, I agree, I know that, but just I think keep going and keep working. अब इससे ज़्यादा अपने आप में होपलेस नहीं होना चाहिए, बस अपने आप में होपलेस ना हो। जो चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करो, उसके लिए तगदो करो, उसके लिए जस्तुजू करो और जद्दोजहद करो, और जदीद तरीक़ों से अपने आप को अपडेट करो। Thank you so much, sir, for coming here today, and thank you so much for the valuable lessons and the insights that you've given us. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.